let us start this evening with the Royal Band.
Dear guests, I request everybody to please stand up while we do the national anthem of India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Let us start the event by paying a tribute to Dr. Samuel Hahnemann, the father of homeopathy. Good evening, everyone. It is an absolute honor to stand before you all today. My name is Aishwarya and I'm proud to represent Burnett Homeopathy Private Limited this evening. And I must say, and I'm truly grateful to be a part of this incredible family. Burnett Homeopathy is not just an organization, it is a vision. A vision rooted in healing, compassion, and the belief that true care goes beyond medicine. And the heart of this vision stands a remarkable journey. From a small village in Kalyanpur, Bihar, in India, with a modest clinic and a powerful dream, Dr. Nitish Chandra Dubey began a journey that many would have thought impossible. No shortcuts, no privileges, just pure dedication, resilience, and an unwavering commitment to healing. And today, that journey has grown into a trusted name across the globe, and we have built a community, a family so big. But the real success of this journey is not counted in numbers. It is seen in the faith of patients who don't just visit Dr. Dubey, they trust him, they respect him, and most importantly, they feel cared for. Because he is way more than just a doctor. He is a healer in the truest sense, a selfless soul who chose service over spotlight and impact over recognition. And that is the foundation on which Burnett Homeopathy stands today. As we celebrate the beautiful evening, we are not just honoring success, we are honoring purpose, passion, and a journey that continues to inspire millions of us. Success is measured in numbers, but legacy is measured in lives. And this is the legacy that this man has built over time. Give a big round of applause for Dr. Nitish Chandra Dubey. And tonight, we celebrate a legacy that continues to heal, a legacy that is built from the scratch by Dr. Nitish Chandra Dubey. Thank you. Ladies and gentlemen, it is an honor ये कहानी लंदन से नहीं बल्कि बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव कल्याणपुर से शुरू होती है, जहां संसाधन नहीं थे लेकिन सपने बड़े थे। डॉक्टर नितीश दुबे ने अपनी मेहनत और लगन से होम्योपैथी को केवल इलाज नहीं बल्कि सेवा और विश्वास का माध्यम बनाया। डॉक्टर नितीश दुबे को अपने पिता दिनेश दुबे से प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें ग्रामीण परिवेश में काम करने का अनुभव मिला और साथ ही उन्हें एक संवेदनशील चिकित्सक बनाया। मेरा मानव सेवा और मेरे पुत्र मनीष और नीतीश का कर्तव्य निष्ठा, जो दिन रात रोगी के इलाज करते करते दवा
फैक्ट्री का निर्मित किया और देश विदेश में भी जन जन तक, घर घर तक, हर दरवाजे तक होम्योपैथी को विश्व में पहुंचाने के लिए आज पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका सम्मेलन किया गया। होम्योपैथ का प्रैक्टिस में 1985 से शुरू किया। तो घर के सामने नीम के गाछ के नीचे फिर शुरुआत किया। उस समय मैं रेल का नौकरी भी करता था। तो मानव सेवा में समर्पित रहने का मेरा संस्कार ही रहा है, इसलिए मैं मानव सेवा के लिए सबसे बढ़िया तरीका होम्योपैथी ही चुना और होम्योपैथ के द्वारा मानव सेवा करना शुरू किया। कल्याणपुर गांव के हरिओम होमियो में नीतीश दुबे ने प्रैक्टिस शुरू की। मरीजों के साथ समय बिताना, भरोसा बनाना, यही उनकी पहचान बनी। पापा का एक ड्रीम था कि होम्योपैथी जन जन तक पहुंचे, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो दवा की क्वालिटी जो होती थी, गुणवत्ता उस लेवल तक नहीं आ पाती थी। तो पिताजी हमेशा बोलते थे, देखो ना हाइड्रोसिटिस का लक्षण है, लेकिन ये दवा ओरिजिनल नहीं है, तो रोगी ठीक कैसे होगा। तो तुम लोग को है ना, इसको फैक्ट्री को, दवा को ओरिजिनल बनाना है मार्केट में। तो यही से हम लोग का बेचैनी बढ़ते गया। जैसे जैसे रोगी गंभीर रोगी है, दवा से पूरा लक्षण मिल रहा है कि ये कोनाइट का है, लेकिन रियल में कोनाइट उसको मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ से हम लोग को बेचैनी बनते गया कि हम लोग को एक कंपनी लाना है जो कि दवा की गुणवत्ता को बेस्ट रखे, जिससे रोगी और जल्दी ठीक हो। और उनके पास नेपाल और भूटान से भी मरीज आने लगे। धीरे धीरे उनकी पहचान स्थानीय स्तर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची। हम तो 1 से 1.5 साल पहले मेरा मतलब बहन यहाँ से इलाज करा रहे थे, उनको भी नहीं हो रहा था, बेटा बेटी कुछ, तो वो इलाज करवाए, उनको सब अच्छा से हो गया। तो फिर वो हमको बोले हम भी परेशान थे, इसके लिए भागलपुर, सुल्तानगंज बहुत जगह दिखा के थक गए। तब फिर वो बताए यहीं आना है, तो हम जमालपुर में इनका ब्रांच है, वहाँ दिखा रहे थे 1.5 साल से। तो हमको कल इसमें मतलब मिल गया इसका अच्छा रिपोर्ट। कोई भी चीज़ तो छोटा से ही बड़ा होता है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास, भरोसा, लोगों का दिल जीतना, ऐसे कोई शौक से तो आते नहीं हैं। हर आदमी यहाँ दुख से आता है, लेकिन यहाँ खुशी से ही जाता है। लेकिन उनका सपना यहीं नहीं रुका। उन्होंने तय किया कि होम्योपैथी को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। फिर दुबई, जर्मनी में सफल आयोजनों के बाद लंदन का यह समिट उनके मिशन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। कल्याणपुर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक का यह सफर सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक संदेश है। डॉक्टर नीतीश दुबे का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि भारतीय चिकित्सा परंपरा का वैश्विक विस्तार है। अगर विजन बड़ा हो तो सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। आज डॉक्टर नीतीश दुबे को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। उनके सहकर्मी भी डॉक्टर दुबे की तारीफ करते नहीं अघाते हैं। ये 1985 से ही क्लिनिक है, लगभग 41 वर्ष हो गया है। इतने दिनों के बाद ये मेहनत रंग लाया है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का गूंज, ये छोटे से गांव का नाम गूंजा है। हालांकि डॉक्टर नीतीश दुबे का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। होम्योपैथी को वो दुनिया के हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उनका सफर अभी जारी है। आज बात बिहार के एक छोटे से गांव से उठी एक सोच की। जी हां, आज ब्रिटेन की संसद और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक गूंज रही है। होम्योपैथी, जिसे कभी मीठी गोलियां कहकर नजरअंदाज किया जाता था, अब वैश्विक मंच पर सम्मान पा रही है। ब्रिटेन में आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथी समिट सीजन 4 का भव्य आयोजन डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारतीय चिकित्सकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया, होम्योपैथी के महत्व पर चर्चा की। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के गौरव का क्षण बन गया। और इस क्षण के जो भागीदार रहे, जो साक्षी रहे, वो रहे डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे, जो आज हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत आभार जी बिहार झारखंड और पूरी टीम को। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि
होम्योपैथी की कमाल संभालने की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? होम्योपैथी मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे और साथ में होम्योपैथी की दवाइयाँ भी गांव में देते थे। बचपन से उनका इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे जब होम्योपैथी के जादुई असर को हम लोगों ने महसूस किया, देखा, तो वहीं से प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं एक ऐसी पद्धति जहाँ पर कि लाचार, बीमार, पीड़ित लोग आते हैं और पिताजी की 2 बूंद दवा से वो ठीक होकर के आशीर्वाद दे के और खुश होकर जाते हैं। तो लगा कि इस पद्धति से जुड़ना चाहिए और यहाँ फिर आगे उसी में बढ़ाया गया। बिल्कुल, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इसकी डेफिनेशन को शायद समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि जो होम्योपैथी है वो मीठी एक दवाई है, लेकिन वो असर बहुत देरी से करती है। लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जो उसका असर होता है वो हर बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि वो इस शब्द को समझे? देखिए, लोग जागरूक हो चुके हैं और यही कारण है कि सालाना जो होम्योपैथी का ग्रोथ है भारत में वो लगभग 25% का है। हर 4 साल में, 5 साल में जो होम्योपैथी के यूजर्स हैं उनकी संख्या सीधे डबल हो जा रही है। ये दुनिया के किसी भी पद्धति के ग्रोथ से बहुत बड़ा है। और रही बात कि होम्योपैथी के विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। ये इसके बारे में जब आप गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये लगेगा कि ये होम्योपैथी भारत का अध्यात्म और जर्मन का विज्ञान है। निश्चित रूप से इसका होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन इसको जब आप बहुत गहराई से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पूरा इसमें आध्यात्मिक स्वरूप आपको दिखेगा। जैसे कि होम्योपैथी में रोग का इलाज नहीं, रोगी का इलाज होता है। और जब रोगी का इलाज हो जाता है तो वो, चूँकि आज का जो दौर है साइड इफ़ेक्ट से भरा दौर है, कोई अगर पेट दर्द का इलाज कराने जा रहा है और उसकी दवा से उसके सर में दर्द हो जा रहा है, कोई बुखार का दवा खा रहा है तो उसको लीवर फैटी हो जा रहा है, कोई दर्द की दवा खा रहा है तो उसका किडनी फेल हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेन जो हम लोग होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं वो शरीर का इलाज करते हैं, साथ में मन का भी इलाज करते हैं। बहुत गहराई से जब आप ध्यान देंगे, जितने दर्शक हैं वो भी जब अपने घर में देखेंगे, जैसे हम लोगों ने महसूस किया है कि जैसे कोई कंधे के दर्द का पेशेंट आता है, तो आप गौर करेंगे कि जिसके जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, जिन्होंने जीवन में जिम्मेवारियों को ज़्यादा सहा है, जिसके बहुत ज़्यादा बॉडरेशन है, उसको कंधा का दर्द होगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी आधार भूत समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से ज़्यादा जो सोचते हैं, उनको पीठ में दर्द होता है। जिनका स्वभाव चिड़चिड़ापन रहेगा उसको उंगली में दर्द होगा। और अर्थराइटिस के पेशेंट को जब आप देखेंगे तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव का रहा है, कभी ना कभी बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुटन की भावना रही है। कोई जो दिन रात छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचता है, मन ही मन में बात को चबाते रहता है, तो उसको, उसका जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर होता है, उसको IBS जैसी समस्या होगी, पाचन संबंधी समस्या होगी। जब इन तत्वों को इन तरह से समझ के शरीर और मन के तालमेल बिठा के दवा का चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही जादुई होता है, अस्थाई होता है और उसके परिणाम बहुत चौंकाने वाले आते हैं। होम्योपैथी में गांव में बैठा हुआ एक छोटा सा डॉक्टर भी दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों से रिटर्न पेशेंट को आसानी से ठीक कर देता है, अगर वो मन और शरीर के तालमेल को ठीक से बैठा पाता है तो। सर, लेकिन अधिकतर ये कहा जाता है कि जो होम्योपैथी है वो थोड़ा स्लोली कहीं ना कहीं असर करती है और यही वजह है कि लोगों में जो पेशेंस है वो नहीं रहता और वो एलोपैथी की तरफ मुड़ जाते हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी पैथी सारा अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा खराब होता है। निश्चित रूप से कोई मरीज अगर किसी छोटे से गांव में प्रचलित चिकित्सा पद्धति में नहीं ठीक हो पाता है और जाके वो एम्स में ठीक हो जाता है, बिल्कुल, या किसी बड़े अस्पताल में जाके ठीक हो जाता है, तो वो पैथी वहाँ खराब नहीं हुआ, वो डॉक्टर की व्यक्तिगत असफलता है। जैसे होम्योपैथी में ही किसी डॉक्टर के यहाँ आप गए, आपको वो तुरंत ठीक नहीं कर पाया, तो ये होम्योपैथी की असफलता नहीं है, ये उस व्यक्ति, उस डॉक्टर की अपनी असफलता है कि उसने मरीज के का जो होम्योपैथी सिद्धांत है उससे उस मरीज को नहीं देख पाया वो, और उसने दवा का चुनाव सही नहीं किया। जब दवा का चुनाव सही नहीं होगा निश्चित रूप से रिजल्ट देरी से आएगा, लेकिन अगर होम्योपैथी में दवाओं का चुनाव सटीक हो तो रिजल्ट जादुई आते हैं, इतनी जल्दी आते हैं कि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं वो भी सन्न रह जाती हैं कि कैसे इतना जल्दी चमत्कार हुआ। यानी कि सही डॉक्टर का चयन करना भी उतना ही ज़रूरी है जिस तरीके से आप ये सोचते हैं कि ये हमें बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट लिया जाए सही जगह से।
निश्चित रूप से आप अगर खराब बढ़ई के पास किसी लकड़ी को रख देंगे तो वो सागवान के लकड़ी को भी खराब नक्काशी कर देगा। और अगर बढ़ई अच्छा रहेगा, लकड़ी थोड़ा कमज़ोर भी है, तो वो बहुत अच्छा नक्काशीदार फर्नीचर बना सकता है। निश्चित रूप से किसी भी पद्धति में एक जो उसका मेंटोर है, जो डॉक्टर है आपका, वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, तभी आपका अच्छा इलाज हो पाएगा। और होम्योपैथी में एक चीज़ और है कि जो मरीज आते हैं वो सारे जगह से थक के आते हैं। जब वो थक के आएंगे तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में उनका बहुत सारा इलाज हो चुका होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक उस पर चल चुके होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। वैसी स्थिति में जो होम्योपैथी का पूरा जो पेशेंट का आप जब खाका बनाएंगे तो लगभग 70% मरीज होम्योपैथी में ऐसे आते हैं जिनका दूसरी पद्धतियों में डॉक्टर जिनको रिजेक्ट कर चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि पूरी तरह से उसका इम्यून सिस्टम खत्म होता है, वाइटल फोर्स 0 होता है और जिम्मेवारी बड़ी होती है। लेकिन अगर दवा का चुनाव सही होता है, अगर कोई सर्दी का पेशेंट आएगा तो सर्दी का पेशेंट अगर आएगा तो उसको फिर एक दिन में सर्दी होम्योपैथी भी ठीक करेगा, और दवा का चुनाव सही होगा तो अन्य पद्धतियां भी करती है। लेकिन होम्योपैथी में का जो डॉक्टर है वो सिर्फ सर्दी ही नहीं ठीक होगा, उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, और सर्दी से उसको जो सर्दी के दवाइयों से जो कमजोरी होनी थी या उसके बुखार के कारण जो दवाइयों के कारण लोगों को नुकसान सहना पड़ा था, वो नहीं सहना पड़ेगा। ये होम्योपैथी की विशेषता है। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, होम्योपैथी में हर तरह के ट्रीटमेंट का इलाज हो सकता है ना? होम्योपैथी में हर तरह के ट्रीटमेंट का इलाज होता है, हर पद्धति में हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, बशर्ते कि चिकित्सक उसको कितनी गहराई से समझता है। मैं फिर कह रहा हूं कि होम्योपैथी में रोग का इलाज होता ही नहीं है, रोगी का इलाज होता है। अगर कोई कैंसर का मरीज है तो आप जब पूरी गहराई से उसका अध्ययन करेंगे तो हम लोगों ने पाया है अपने व्यक्तिगत चिकित्सा में कि होम्योपैथी में या एलोपैथी में या फिर आयुर्वेद में किसी भी चिकित्सा पद्धति में जाएगा, अगर कैंसर का मरीज है तो आप जब देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से शुरू से कुंठित रहा है, अंदर से उसने कष्ट सहा है और वो कैंसर के रूप में विस्फोट करके उसके सामने आया है। आप हर मरीज का जो रोगी होता है, आपको रोग दिखता है अभी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जो विषाक्त चीज़ें हैं वो चलती रहती है, वो विष बाहर आता है रोग के रूप में। ऐसा होम्योपैथी का मानना है, मेरा मानना है। यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उपयोगी है। आप समझिए, निश्चित रूप से अगर कोई दुर्गा पूजा अभी किया, 9 दिन भूखे रहता है, 10वां दिन मेला में नाचता है, लेकिन 9 दिन कोई अगर किसी को रूम में बंद कर दिया जाए तो 10वां दिन हॉस्पिटल जाएगा, पानी चढ़ेगा, तब वो घर आएगा। तो निश्चित रूप से मन का, उत्साह का तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। कोई महिला ही है, अभी पर्व करेगी, एक दिन भूखे रह जाती है, बिना पानी का रह जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक दिन उसको रूम में बंद कर दिया जाए और पानी नहीं दिया जाए, अब बिहार में कांवड़ यात्रा लोग करते हैं तो दौड़ के डाक बम चला जाता है 100 किलोमीटर, लेकिन 100 किलोमीटर अगर किसी को ऐसे पुलिस दौड़ा दे 10 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर में कितना भी मजबूत धावक रहेगा वो मर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन 100 किलोमीटर डाक बम दौड़ जाता है। तो ये जो उत्साह है, ये जो मन का उमंग है, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई टॉनिक बना ही नहीं है। और होम्योपैथी उसी मन पे काम करता है, उसी मन को जागृत करता है, उसी वाइटल फोर्स पे काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और होम्योपैथी का मानना है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ गया, आपका मनोबल बढ़ा, उत्साह बढ़ा जीवन में, तो ऐसे ही सारे रोग ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी और एलोपैथी के साथ मिलकर काम किया जा सकता है? मैंने हर बार कहा है कि मैं हर मंच पे कहता हूं कि हर पद्धति की अपनी सीमाएं होती है और उसका अपना एडवांटेज होता है। अगर कोई इमरजेंसी केस में अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो निश्चित रूप से एलोपैथी उसके लिए बहुत बेहतरीन है, उसके बिना उपाय नहीं है, उसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज है, वैसे स्थिति में होम्योपैथी बहुत बेहतरीन काम करती है। तो भारत और दुनिया में होम्योपैथी इंडस्ट्री की ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? देखिए, भारत का जो ग्रोथ है वो तो जादुई आंकड़ा को पार कर रहा है। अब हम बताएं कि हम लोगों ने जो सबसे पहला वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट किया था, दुबई में किया था, और दूसरी बार फिर हम लोगों ने दुबई में ही किया, बुर्ज अल अरब में, जो दुनिया का सबसे लग्जरी, सबसे बड़ा होटल माना जाता है। वहाँ पर दुनिया के होम्योपैथी डॉक्टरों को बुला के हम लोगों ने ऑटिज्म पे बात की थी, ऑटिस्टिक चाइल्ड पे सेमिनार किया था। तीसरा सेमिनार हम लोगों ने किया जर्मनी में, जो वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट 3 था, वो जर्मनी में
हुआ और वहाँ भी दुनिया भर के चिकित्सक आए हैनीमैन साहब के घर पे, जहाँ से होम्योपैथी का उदय हुआ। वहाँ पर जाके हम लोगों ने सेमिनार किया और उस सेमिनार को देख के पूरे दुनिया को लगा कि होम्योपैथी की धमक इस तरह से, भारतीय होम्योपैथी की धमक है, ऐसा दुनिया में कहीं भी इस तरह से होम्योपैथी को ऑर्गेनाइज वे में नहीं चलाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ एलोपैथी की उत्पत्ति हुई वहीं होम्योपैथी का भी जन्म हुआ और निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा ग्लैमर था, ज़्यादा सारी सुविधाएं थी, तो होम्योपैथी कहीं ना कहीं दबा रह गया। और लेकिन आप फूल में अगर खुशबू रहेगा, उसको कितना भी दबाया जाएगा तो उसके खुशबू को आप नहीं रोक सकते हैं। उसके खुशबू से कल आज ना कल आपको सराबोर होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे दुनिया इसके फ़ायदों को समझ रही है और प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के नुकसान से जैसे जैसे दुनिया संकट में आई है, तो पूरी दुनिया ने इस बात को माना है कि अगला जो अपना जो वैश्विक स्वास्थ्य का जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें होम्योपैथी से बड़ा दुनिया का कोई हथियार होम्योपैथी से बड़ा नहीं है उसमें। बिल्कुल। और हाल के दिनों में हमने देखा भी है कि जो लोग हैं वो नेचुरल चीज़ों की ओर ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं। तो क्या होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट भी होता है या फिर नहीं होता? देखिए, साइड इफेक्ट को समझना, साइड इफेक्ट शब्द को समझना बहुत यहाँ पे टेक्निकल शब्द आपने कहा। साइड इफेक्ट का परिभाषा होता है कि कोई चीज फायदा होते हुए नुकसान अगर कर रही है तो साइड इफेक्ट उसको कहा जाएगा। रिएक्शन अलग चीज है और साइड इफेक्ट अलग चीज है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ अगर आपको फायदा कर रही हैं तो नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप किसी कमजोर डॉक्टर से खा लेंगे, अगर आपके पेट में दर्द है और वो माथा दर्द का दवा आपको दे रहा है, तो रिएक्शन तो हो सकता है। दवा का चुनाव अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से दुनिया का नियम है कि जो क्रिया करेगा वो प्रतिक्रिया करेगा। बिल्कुल। तो साइड इफेक्ट होम्योपैथी का कुछ नहीं होता है। जैसे कि अगर आप किसी को केला खाना है, केला बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अगर कोई सर्दी में केला खा लेगा तो केला का साइड इफेक्ट होगा ना? बिल्कुल दिक्कत होगी। वो केला का साइड इफेक्ट नहीं हुआ, आपके दिमाग का साइड इफेक्ट है कि आपने चुनाव सही नहीं किया। तो उसी तरह से होम्योपैथी दवाओं में भी अगर किसी को पेट में दर्द है, अब उसको कमर दर्द का दवा देगा डॉक्टर। किसी को अलग बीमारी है और जिस डॉक्टर के पास वो गया उसने दवा का गलत चुनाव कर दिया, तो निश्चित रूप से किसी भी पद्धति में उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। सर, होम्योपैथी में रिसर्च और इनोवेशन की क्या भूमिका है? देखिए, होम्योपैथी में रिसर्च की बहुत बड़ी, किसी भी पद्धति में कोई भी जो विज्ञान है वहाँ पर तो खोज चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से होम्योपैथी रिसर्च में कहीं ना कहीं पीछे रहा था। अभी जो नई युवा पीढ़ी आई है वो कहीं ना कहीं खोज रही है, क्योंकि होम्योपैथी का जो पूरा बेस है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है और इसमें जितना आप डूबते जाएंगे लगेगा कि ये अथाह समुद्र है, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। इसी संदर्भ में अभी हम लोगों ने लंदन में प्रोग्राम किया था, वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट 4, जहाँ पर दुनिया भर के चिकित्सकों ने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया। कैसा रिस्पॉन्स रहा वहाँ पर लोगों का? बहुत अच्छा रहा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोग्राम हुआ जहाँ प्लासिबोपैथी का के होम्योपैथी को नकारा गया था। आज उसी संसद में होम्योपैथी के लिए तालियां बजी। होम्योपैथी के जादुई असर को हमारे डॉक्टरों ने एविडेंस के साथ दिखाया कि कैसे ये कैंसर का पेशेंट था, इसका कैसे रिकवरी हुआ, कैसे ये अर्थराइटिस का पेशेंट था जिसका आरए फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया था, कैसे ये मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी का था जिसका CPK 20,000 था, और कैसे होम्योपैथी के डॉक्टरों ने उस पर रिजल्ट दिया। उसको देख के पूरी दुनिया अचंभित है। आपको इतना अनुभव हो चुका है, हर तरीके के पेशेंट आपके पास आते होंगे, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जिसे देखकर लगा हो कि हाँ ठीक है, मैंने इस तरीके के पेशेंट को भी होम्योपैथी से ठीक कर दिया है? सच कहूँ तो मतलब रोज मेरा 300-400 पेशेंट रोज मैं देखता हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन की नहीं लगता है कि मतलब जो दुनिया के बड़े अस्पताल हैं, बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं, उससे रिटर्न पेशेंट मुस्कुरा के ना जाता हो, ऐसा कोई दिन मेरे जीवन का नहीं बीता है। हर रोज ऐसा चमत्कार होते रहता है जब जहाँ पर लगता है कि अरे मैंने ये कर दिया। एक आत्मविश्वास होता है, और होम्योपैथी ऐसी महान चिकित्सा पद्धति है कि इसको अगर बहुत गहराई से पढ़ा जाए, समझा जाए और अच्छे तरीके से इस पे इलाज किया जाए तो फिर दुनिया में इससे बड़ा कुछ है ही नहीं इलाज के लिए। बर्नेट होम्योपैथी किन नए प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? देखिए, होम्योपैथी में टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है आपको कितना इसमें आप डूब के ज्ञान से खोजते हैं। निश्चित रूप से जो हमारी कंपनी है वो नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं और नए डिजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। जो दुनिया को प्रभावित करने वाली ऑटो इम्यून डिजीज हैं, या जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है,
या पार्किंसन है, इस तरह के रोग, लिकोडर्मा, खास करके लिकोडर्मा के मरीज जो कि बहुत निराश हो जाते हैं सफ़ेद दाग में, ये होम्योपैथी का कोई भी गांव में बैठा डॉक्टर चुटकी में ठीक कर देता है। मतलब दवाई लंबा चलता है, चूँकि वो लाइलाज बीमारी के श्रेणी में है, मन भी उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर दवा का चुनाव होम्योपैथी के डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी कंपनी भी दवा बना रही है, और निश्चित रूप से हम लोग क्रॉनिक डिजीज पे अभी काम कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया असफल है, वहाँ पे हमें सफलता का झंडा गाड़ना है। ये सर्दी खांसी बुखार तो ये ऐसे भी ठीक हो जाता है 2-4 दिन में। अगर कोई दवा नहीं भी खाएगा, किसी को सर्दी हुआ, वो एलोपैथी दवा खाएगा तो 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद दवा खाएगा तो 5 घंटे में ठीक होगा, होम्योपैथी का कोई कमज़ोर डॉक्टर भी दे देगा तो 1 आध दिन में ठीक हो ही जाएगा, नहीं भी दवा खाएगा तब भी 3 दिन में ठीक हो ही जाएगा सर्दी। तो हम जो हमारी कंपनी है या जो हमारी टीम है, वो क्रॉनिक डिजीज पे अभी काम कर रही है, जो दुनिया में जिसको लाइलाज मान चुका है लोग, जिसके रोगी घर बैठ चुके हैं निराश होके, हताश होके कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, वैसे डिजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। सर, आपको क्या लगता है क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होम्योपैथी की चुनौती होम्योपैथी ही है। होम्योपैथी में डॉक्टरों का अकाल है, बिना डिग्री वाले डॉक्टरों का भरमार है। कोई अब किराना दुकान चला रहा है, साथ में उसके होम्योपैथी दवा भी चला रहा है, और आश्चर्य होगा आपको सुन के कि वो किराना दुकान वाला भी पेशेंट को ठीक कर दे रहा है। मतलब ये इतनी महान चिकित्सा पद्धति है, इसका हृदय इतना बड़ा है और साइड इफेक्ट इतना नग्न है कि कोई भी, मान लिया आप टीचर है, वो दवा दे रहा है पढ़ करके और उसने दवा दिया और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी में आ रहा है। लेकिन चुनौती यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कम रिसर्च किया हुआ, कम पढ़ा लिखा, कम शोध किया हुआ डॉक्टर जब मरीज को दवा देता है तो उसे रोग की गंभीरता नहीं समझ में आती, समझ पाता वो। जैसे कोई बीपी का पेशेंट आया, उसका 200 बीपी है, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग रेफर कर, मेरे जैसे डॉक्टर को मेरी सलाह है कि उसको रेफर कर दीजिए कि तत्काल आप इमरजेंसी में एलोपैथी दवा खाएं, और उसके बाद जब वो कंट्रोल हो तो होम्योपैथी उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर हम लोग अपनी सीमाओं को नहीं समझेंगे कि क्या हमारी सीमाएं हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। लेकिन ये दिक्कत इसी कारण से होता है कि होम्योपैथी का जो शिक्षा का स्तर है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। जितने भी लोग सफल हुए हैं वो उसकी एकात्म सफलता है, वो खुद से वो उन्होंने पढ़ा है, खुद से अपने ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने परचम लहराया है पूरी दुनिया में होम्योपैथी। इसकी बड़ी वजह आप किससे मानते हैं कि आपने कहा कि होम्योपैथी में डॉक्टर्स की भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है, तो इसका भविष्य हम कैसे देखें? नहीं, नए जो छात्र हैं वो बहुत पढ़ के आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। पहले की जो विसंगतियाँ रही सरकारी स्तर पे भी और इस पे भी कि जो पढ़ाई का स्तर रहा वो उतना उन्नत नहीं रहा जितना प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के छात्रों को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन अब जो नए कॉलेज हैं, अभी जो आयुष मंत्रालय है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और नियंत्रण है कि कैसे होम्योपैथी दवा की गुणवत्ता को दिन प्रतिदिन बढ़ाया जाए, इसके छात्र कैसे और ट्रेंड हो। निश्चित रूप से ये अगला जो दशक होगा ये होम्योपैथी के लिए स्वर्णिम काल होगा। आपको लग रहा है कि अब झुकाव बढ़ रहा है बच्चों का इस ओर? निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएगा, जब आप फूल में खुशबू, मैंने पहले भी कहा था, फूल में जब खुशबू रहेगा तो उसके सुगंध से सब लोग प्रभावित होंगे ही। तो होम्योपैथी के अलग अलग गांव में, कस्बे में, शहर में बैठे क्लिनिक की भीड़, उनकी अपनी जो चिकित्सकों की अपनी एकात्म सफलताएं हैं, उनका शोर धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है कि उस शोर से पूरा जो मेडिकल सेक्टर है वो गुंजायमान हो रहा है और इसके चलते छात्रों का भी झुकाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर, जी बिहार झारखंड के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिहार झारखंड के माध्यम से मेरा सभी लोगों से यही संदेश है कि 3-4 जो होम्योपैथी के प्रति आप लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं उसको पहले से दिमाग से निकाल दीजिए। पहला जो भ्रांति है कि होम्योपैथी दवाइयां धीरे धीरे काम करती हैं, इस भ्रांति को निकाल दीजिए। अगर दवा का चुनाव सटीक होगा तो जितना सांस लेने में जितना टाइम लगता है उतना जल्दी दवा काम करेगा। अगर दवा का चुनाव सही हुआ तो जितने देर में आप सांस लेते हैं, क्योंकि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है तो ये इम्यून सिस्टम पे सीधे पहुंचता है, तो इसके इतना जल्दी कोई दवा दुनिया में काम कर ही नहीं सकती है। एक तो यहाँ पे इस भ्रांति को निकालता है पहला। दूसरा भ्रांति है कि रोग बढ़ता है इसमें और फिर घटता है। ये सबसे बड़ा जो होम्योपैथी के ये जो आडंबर फैलाया गया है कि होम्योपैथी में पहले रोग बढ़ता है। अगर कोई बीपी का पेशेंट आएगा और उसका बीपी बढ़ा देंगे तो वो बचेगा?
बिल्कुल कोई बुखार का पेशेंट आएगा और बुखार उसको डॉक्टर बढ़ा दे। जी। पूरी दुनिया में कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति का निर्माण सिर्फ इसीलिए हुआ है कि वो मरीज के कष्ट को हर सके। एग्रावेशन जरूर होता है, अगर आप किसी हाइयर एंटीबायोटिक दवा से किसी रोग को दबा के बैठे हुए हैं, आप अचानक से उस दवा को छोड़ेंगे तो जो वास्तविक रूप है, जो आप कल्पना में जी रहे थे कि मेरा रोग ठीक हो गया है, वो जब उभरता है तो लोगों को लगता है कि होम्योपैथी बढ़ा दिया। होम्योपैथी में रोग नहीं बढ़ता है। इस बात को कि दवा खाने से रोग पहले बढ़ता है तब घटेगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। तीसरी जो बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी के बहुत सारे क्लिनिक या डॉक्टरों को मैं भी देखता हूँ, तो वो उसके चिट्ठा में लिखते हैं कि चाय नहीं पीना है, धूप में नहीं जाना है, सेंट नहीं लगाना है, बारिश में नहीं जाना है। तो एक डॉक्टर का मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था मैं, तो उसका जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन था, उसके पीछे में जितना परहेज बताया गया था, उसमें लगा कि जैसे हिरण्याकश्यप ने जब वरदान मांगा था कि नर नहीं मार सकता है, जमीन पे नहीं मार सकता है, मादा नहीं, तो उससे भी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन था उस दवा को खाने का, जो कि निश्चित रूप से पूरी तरह से बकवास है। कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि अब कोई थूजा ले रहा है तो उसके लिए चाय वर्जित है। इस तरह से एक पूरा लिस्ट है कि इस तरह से कोई अगर एलियम सीपा प्याज से बना है तो प्याज उस समय नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी का कोई दवा खाएंगे तो प्याज नहीं खाएंगे, होम्योपैथी का कोई दवा खाएंगे लहसुन नहीं खाएंगे। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, एक जो बाजारवाद का एक पूरा तंत्र इसको प्रचारित करने में लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी दवाएं भी अन्य दवाओं की तरह समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं हमें इस पद्धति को। सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Now we are standing here for the World Homeopathy Summit 4. Give a big round of applause for this stage and this event. Okay. As we continue this celebration, we now move forward towards something that's even larger, something global in its vision and impact. The World Homeopathy Summit is not just an event, it's a movement that brings together voices from across the world, united in one belief, the power of homeopathy. From the remarkable beginnings in Dubai with World Homeopathy Summit 1 and 2, to the incredible success of World Homeopathy Summit 3 in Germany, this journey has consistently grown stronger, wider, and more influential. Each summit that you've seen and we've shown has not just gathered people, it has built a global community. A community of doctors, practitioners, and believers who share one common purpose: to give homeopathy the platform and recognition it truly deserves. And this vision has been driven by the relentless effort of Dr. Nitish Chandra Dubey, whose mission has always been clear: to elevate homeopathy to the global stage where it rightfully belongs. Having successfully coordinated 3 powerful summits, today we step into yet another milestone, World Homeopathy Summit 4. And this is what makes this movement even more special. And where we stand today, at the iconic Natural History Museum, a place that represents knowledge, history, and global significance, we add another chapter to the journey of homeopathy. This is not just a continuation, this is an expansion of his vision. A vision that is crossing borders, breaking limitations, and reaching hearts all across the world. As we move forward, there's one thing which is very certain, that this journey is way far from over. This stage is not where we stand, this is where homeopathy rises. Not quietly, not gradually, but powerfully, globally, and unapologetically. And tonight, the world doesn't watch, it listens. Give a big round of applause for everybody who's present here. Thank you so very much. A very good evening, you lovely people. It is my great pleasure to welcome you all. Today we are honoured to welcome Burnett Homeopathy Private Limited, a leading Indian homeopathic organisation that has, since its establishment in 2018, rapidly established itself within the industry for remedies
that cures the world. The company is led by Dr. Nitesh Chandri Dubey. Chairman and Managing Director, his leadership continues to advance both innovation and international collaboration within homeopathy. This evening we come together not only to recognize this important global day, but also to celebrate the vision of Dr. Dubey, to honor excellence and to strengthen the international relationship that continue to shape the future of homeopathy. We are privileged to host this occasion within the Natural History Museum. Ladies and gentlemen, it is an honor to welcome you all, and we do hope you have a glamorous evening. Just before we start, could we invite Dr. Nitesh, please, to come to the stage? And a huge round of applause, please. So, ladies and gentlemen, it is an honor to have so many special guests with us this evening. We have some absolute legends of the world of cricket. I'm sure we have lots of cricket. Do we have cricket fans in the room tonight? Yes. Some absolute legends we have here. Could I start, please, by saying, ladies and gentlemen, it is an honor to welcome Alistair Cook, amongst many others, England's highest Test run scorer, a true symbol of discipline and consistency, whose legacy inspires generation. His journey reflects the power of patience, focus, and quiet determination. Could I also please welcome to the stage Raj Kumar Pandey and Prashant Dubey, please. The legend that is Alistair Cook. It's a privilege to welcome Eoin Morgan, the visionary leader behind England's 2019 World Cup victory, whose fearless approach transformed the game. He redefined modern cricket with bold thinking and confidence. I would request Eoin Morgan, please come on the stage, sir. I would also like to call upon stage Mr. Pankaj Bhatkar and Ms. Amrita to greet him. We are delighted to welcome Sir David Gower, a symbol of elegance in cricket, remembered for his grace and remarkable leadership. His style brought a timeless charm to the sport. Please welcome Mr. David Gower. I'd also like to call upon stage Mr. Prince and Mr. Akash Dubey to greet him. Now, we are honored to welcome Mr. Jonathan Trott, known for his composure, consistency, a true example of resilience and dedication. His mental strength sets a benchmark for excellence. Please welcome Jonathan Trott on the stage. I would also like to call upon stage Mr. Dikshit Passe to greet him. Proudly welcome Mr. Stuart Broad, a legendary fast bowler with over 600 test wickets, known for his passion and match-winning spirit. His ability to rise in crucial moments make him truly exceptional. Please give a big round of applause for Mr. Stuart Broad.
Can I please call upon stage Sir Alistair Cook? Sir? We'd like you to please come on the stage and share a few words with us. Give a big round of applause for Sir Alistair Cook. Good evening, everyone. Well, this is a first for me. I don't think I've ever done a speech in front of a big blue whale. I think that's a woolly mammal over there. But what a fantastic room to do a speech in and to be invited by Dr. Nitish Dube here tonight. It's a fantastic event. We've had a brilliant time, and I think we should all give another round of applause to all the award winners today. I think a fantastic effort. It is a privilege to be here tonight to join in such a magnificent setting. The National History Museum actually was the first time I came here when I was 8 years old, and the whale was still here. And it celebrates the endurance of life and the wisdom of the natural world themes that are very much the heart of why we're gathered here today. In my years of playing cricket, I learned that success isn't just a quick fix. It's about endurance, patience, and building a strong foundation. Can we please have Sir Stuart Broad on stage? Give a big round of applause for Sir Stuart Broad. We'd love for you to share a few words with us, sir. Good evening, ladies and gentlemen. It's wonderful to be here this evening in such a wonderful event in one of the most incredible rooms I've ever been to. I live in London now, and I've never been in this room, and I will remember this evening for being such a special event and being here tonight. As a sports person, we take our health very seriously. I think of the cricketers in this room, the five of us, Owen Morgan, David Gower, Sir Alistair Cook, Jonathan Trott and myself, 1,300 international caps between us, which meant that we focused on our health, we drove ourselves forward, and it's a pleasure to be in a room with so many special people here this evening. Dr. Dube, your drive, your passion, your inspiration in moving health forward is absolutely superb, and we're delighted to be in a room with you. It's amazing to see the community you've managed to build and how many people you're driving and moving forward. So I won't keep you much longer. I'm sure there's a few hungry people after a few of those dance moves that I've just witnessed. Thank you for having us all, and a pleasure to be here with you. Now I'd like to call upon stage Mr. Jonathan Trott. Please welcome, sir. We'd love to hear from you. Good evening, everybody, and thank you for organising the giraffes here. I feel right at home with my African roots, so it's been an awesome evening to see everybody here. It's a great pleasure to be here at the Natural History Museum, looking at these incredible exhibits. You realise that the nature, and they always provide answers for survival and growth. In my career, I've always believed the success comes from balance, consistency, whether you are at the crease or in your daily life. Your health, both physical and mental, is your foundation. And when that foundation is strong, everything else falls into place. This is why the work of Dr. Nitish Dube is so important. Homeopathy is a science that focuses on what very foundation, strengthening your body, internal balance naturally. It's not just about treating the symptoms, it's about the holistic approach to a better life. Can I please call upon stage Sir Eoin Morgan? Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is an absolute pleasure to be here this evening at this spectacular venue, the Natural History Museum. It is also a privilege for us to see the progress throughout the years that the summit has evolved. I myself was there in Frankfurt last year, like everybody in this room, and saw the progression from there until here. So can I have a round of applause for Dr. Nitish Dube and everybody who has contributed. Homeopathy, as an ex-professional cricketer and as a father, is such an important part of everybody's future. Finding a solution, a natural one at that is so passionate and
certainly from my point of view, believable remedy that can help us fulfill the future and longevity in everybody's life is something that I hold very dearly in my heart. Thank you so much, sir. Last but not the least, can I please call upon stage Sir David Gower? Give a big round of applause for him, everybody. Ladies and gentlemen, it is, of course, special to be in this room with so many of my former colleagues and old friends, some of whom have seen better days here. This is a very special event. Can I say, though, just a couple of observations before I do the obligatory thanks. This has been a mix of both cultures, to have the band playing throughout. I kind of wonder, in one sense, how many of the people in this room realize what that band was playing halfway through this room or halfway through proceedings. To start with Land of Hope and Glory, and to finish with the drums like that, which I'm told is a homeopathic cure for deafness. That shows you that both cultures live beautifully together. We have thanks to give to Dr. Dubey especially for everything that's happened in this room. Congratulations to give to all those who've taken home those endless bloody awards. I want a homeopathic cure for a neck brace here because I had to change sides with Stuart because turning to the left for half an hour there was starting to wear me down. But I appreciate all the effort that's gone in to everyone who has been here tonight and everything they've done. And if the work of Dr. Dubey and Burnett continues to flourish, then I'm sure we'll be all so much better off. So thank you very much indeed for a fascinating and most enjoyable evening. Thank you. It's a real pleasure to welcome you all to Parliament today. To have over 100 homeopathy doctors visiting from India and across the world is not only fascinating, but genuinely interesting. You bring with you generations of knowledge, experience, and a perspective on healthcare that is rooted in understanding the body as a whole. And here in the UK, we are increasingly moving towards a model that prioritizes prevention rather than cure. And this shift makes your work more relevant than ever. You are part of a field that has long focused on balance, early intervention, and treating the individual rather than just the symptoms. The depth of knowledge within homeopathy is now being recognized more widely across the world, alongside growing interest in yoga, meditation, wellness, and other natural ways of living. And on a personal note, I have had very positive experiences with Ayurveda, with homeopathy, and other natural approaches to health. I have seen firsthand the benefits they can bring, whether improving overall well-being, supporting recovery, or simply helping maintain a balanced life day to day. Well, welcome to the British Parliament. We are so thrilled that you're here. I'm Lord Raval, and I am so grateful that other people who believe in Ayurveda and the holistic medicine, how many of you actually practice Ayurvedic or use a holistic medicine in your own lives? How many of you are there? Show me. Well, Dr. Dubey, you are a true star for bringing this consciousness of not just allopathic stuff, but really the alternative. For thousands of years, our communities have had seen the real intelligence within the herbs, within nature, and within science. And what you have done is integrated these three things to make sure that we are so much more healthy than we would be otherwise. Health and well-being is an absolutely critical factor within our economy. And I just wanted to ask, can I just ask you before I continue, is your aim to expand the United Kingdom? Is this why you are here? I'm so sorry I was late. I had to give a speech somewhere else, and I was stuck in the London traffic, which is just as the same as the Delhi traffic. So you'll understand what that means. But is your aim to expand the United Kingdom? Can I just know? Distinguished scholars, medical pioneers, and honoured guests.
Standing here within the hallowed halls of Oxford University, a cradle of innovation and the guardian of scientific truth for centuries, we are reminded that progress is born from the courage to explore new frontiers. Today, Oxford serves not just as a witness to history, but as a bridge to a healthier future for all of humanity. The world is currently at a critical crossroads. We are battling a silent pandemic of antimicrobial resistance, a rising tide of chronic lifestyle diseases, and a global healthcare system that is becoming increasingly unsustainable. So we have some very, very special, distinguished, esteemed panel of guests. Please welcome Miss Elizabeth Rachel Goodwin, Chief Executive of the Homeopathy Research Institute. She's led the organisation since 2012 under her stewardship. The international charity has advanced high-quality research and strengthened the global communication of evidence-based homeopathy. MS Goodwin is a former practicing homeopath and holds a first-class honours degree in biological sciences. Thank you. Next we welcome to the stage Mr. Christopher Johan Connolly, who graduated from Sheffield Hallam University with a degree in business and marketing. He spent 5 years working with the British Homeopathic Association, Faculty of Homeopathy, and European Committee for Homeopathy, managing digital communications and operations in addition to freelance website management and content writing before joining HRI full-time in 2017. Thank you so much. Next we welcome to the stage Amy Taylor, BA Honours in Communications Assistant. She graduated from Bournemouth University in 2025 with a degree in Media and Communication, having previously worked with Ocado. Amy joined HRI in May 2025 and has since supported the charity's communications output. And next we welcome to the stage Dr. Gary Smythe, who served as President until March 2025. He's a respected member of the Faculty of Homeopathy and currently serves as Medical Director at Randox Health. He is widely regarded for his contributions to the field. And next we welcome to the stage Dr. Alexandra Milo is a practitioner of classical homeopathy and holds a doctorate in microbiology. She is recognized for her work in exploring the scientific foundations of homeopathy and for her advocacy in advancing its integration within modern healthcare. Welcome to the stage, Anne Smythe is a distinguished practitioner holding a DFHOM qualification and affiliation to the Faculty of Homeopathy, with a strong commitment to professional excellence in the field. And next we welcome to the stage Professor Leonie Bonomin from Brazil, a professor at Universidade Paulista. She qualified in veterinary medicine in 1987 and obtained her PhD in experimental and comparative pathology in 1995. Her academic work has significantly contributed to the scientific study of homeopathy. And we welcome to the stage Dr. Barbara Hanachova, who is a registered midwife and an experienced specialist in infant feeding and tongue-tie management. She is also a qualified homeopath, herbalist, and integrative nutrition and health coach, bringing a holistic approach to patient care. And could we please welcome to the stage Dr. Raha Hussain Farnsworth.
please welcome to the stage Gil Graham? And can we please welcome to the stage Larissa Corda?